So hello everyone. This is a new fan club of KKR. मेरा नाम अभिजीत और मैं आपका स्वागत करता हूँ ये एक KKR 2021 ऑक्शन रिएक्शन पे। मेरे साथ हैं आदित्य एंड देन सौरभ एंड हमारे यंगेस्ट फैन एट द मोमेंट इन दिस पॉडकास्ट मिस्टर सुहेल. So Aditya, over to you. Please introduce yourself to our viewers. Yeah. Hello, am I audible? Yes. Okay. So I'm Aditya from Delhi. So I'm a big fan of KKR. I have been supporting KKR since 2008 and one of the die-hard fans of KKR. Okay. I have been following KKR since my childhood. So anything for KKR. Okay. Next, Saurabh. How old are you first? And me and Saurabh both are from Odisha, so I know him very pretty well. So Saurabh, please tell us about yourself. Yeah, currently I'm 22-year old, and it's been a long since I'm supporting KKR. It's like I was very young in 2008 when I first saw Brandon McCullum batting against RCB in the very first match of IPL opening season. And since then, I am a Knight fan, and it's always been a great to support the purple and the golden man. So, and here I am joining a new club for them. Yeah, Anything for KKR, as Aditya said. yeah. And all our fans, all our KKR fans must be thinking the same, like anything for KKR at the moment. So next, Suhail, how old are you first? I'm 23 years old. I'm from Gujarat. Okay, so maybe I have addressed you wrongly as the youngest. Maybe Saurabh is youngest then. Anyway, so and you have been featured in the KKR page with this very T-shirt, right? That this pose, if I remember correctly. Yes. Yeah, absolutely right. And I think I have been featured. My jersey making has been featured. Aditya has been featured. Aditya went on to participate in the NDTV as well. Saurabh has not done any Bharat Army stuff yet. Neither Sohail. So No, not yet. okay. So first of all, which night you are excited to see back in KKR? For me, it has to be Harbhajan Singh and Shakib Al Hasan. What about you guys? Sohail, you can say. Same as you. Okay, and Aditya, which night you are excited to see in KKR? Yeah, just the same. To be honest, Shakib Al Hasan is back. I'm quite excited. And picking up Harbhajan was always a dream. So I'm very excited and I'm happy for Ben Cutting also. He's someone that every time we see people are commenting on KKR post that we should take Ben Cutting, and finally he's there. So these three players I'm looking forward to. हाँ एक्चुअली फॉर मी हरभजन सिंह का ऐसा है कि यार वो मतलब केकेआर को इंडियन लेजेंड्स अगर आज तक किसी ने रिप्रेजेंट किया है तो वो है गांगुली और उसके बाद कुछ हद तक गौतम गंभीर कुछ हद तक नहीं आई मीन ऑफ कोर्स आवर मेन नाइट सो फार उसके बाद अगर कोई लेजेंड अभी ज्वाइन कर रहा है जो इंडिया का हो आई थिंक दैट इज हरभजन सिंह ओनली राइट आई डोंट रिमेम्बर Right. एनीवन एल्स रॉबिन उथप्पा ही हैज बीन रेगुलर बट इंडियन जिसका मतलब इंडियन नेशनल टीम में इतना बड़ा रोल हो देन इट हैज़ टू बी ओनली हरभजन तो हरभजन का वो भी मेरे को याद है मतलब आप पता नहीं आप लोग कितने साल के थे कोलकाता टेस्ट तो उसके बाद से उनका ईडन गार्डन के साथ कुछ तो नाता था जो अभी इस साल पता नहीं आईपीएल कहाँ हो रहा है बट अगर ईडन गार्डन पे होता है तो वो मेमोरी सबको तो याद आने वाली है कि यही हरभजन थे जो वो फॉलो ऑन टेस्ट पे या उससे पहले टेस्ट चेन्नई पे या जो भी वो पूरी सीरीज थी वहाँ पे मतलब इतने अच्छे बॉलिंग की थी कि वहां से उनको रिकॉग्निशन मिला था वहाँ पे कोलकाता में हैट्रिक था आप मतलब हाउ मेनी ऑफ यू रिमेम्बर दोस हैट्रिक To be honest, I don't remember actually. I was How like old were a you? very small kid, and I was 9 years old. I guess four, 3 or 4, I guess. Okay, and Suhail must be 2. Like what the number of age I was is the number of wickets he took in that match. I think he took a hat trick of Shane Warne, Gilchrist and Ponting, I guess, if I'm not wrong. And okay, so next Shakib.
साकिब के बारे में मतलब अभी के आई एम डाई हार्ड केकेआर फैन, बट मेरा जो पीक चढ़ा था वो गौतम गंभीर आने के बाद चढ़ा था। और गौतम गंभीर जिस टीम में मतलब 2001 से लेकर 7 तक जो टीम बनाए थे वो, उसमें अभी ऑफकोर्स सुनील नारिन है और आंद्रे रसल ज्वाइन किए थे आई थिंक 2014 और 14, 2013 पे ही वाज विद दिल्ली राइट 14, yeah. या yes, with Delhi. हाँ, यस हाँ. तो उस टीम का अगर कोई मतलब जो लेगेसी अभी कंटिन्यू कर सकता है तो उस टीम में मेरे को साकिब अल हसन बहुत पसंद है। और उसी टीम के अगर 4-5 नाइट्स के नाम आप ले तो उसमें साकिब का नाम जरूर आएगा। ऑल्दो वो मतलब मोस्ट ऑफ द मैचेस वो खेले, ऐसे नहीं कि ऑटोमेटिक पिक थे प्लेइंग 11 पे, क्योंकि सुनील नारिन वाज आवर प्राइमरी स्पिनर। बट अगर उस टाइम गोल्डन एरा की बात करें जो 2011 से 17 गंभीर ने लीड किया था, उस टीम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे साकिब अल हसन, इसलिए उनको पर्पल एंड गोल्ड में देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मे बी आदित्य, इफ यू कैन टेक ओवर एंड टेल लाइक हाउ आर फीलिंग टू सी साकिब बैक इन केकेआर। Yeah, really excited to be honest, because he has been a lucky charm for KKR from the time he has stepped into KKR under Gautam Gambhir's captaincy. Back in 2011, we saw KKR qualifying for the first time, and then in 2012, KKR lifting the cup. 2014, we are again lifting the cup, and Shakib has been a part of this team ever since then. And then also we see the amount of contribution he has done for the team, the way as a batting all-rounder as well as a bowling also. He has done fabulous in both the departments, and I believe that it's a good thing that he's back to the KKR, and his experience and guidance will help the youngsters also. What I am thinking is Sakib is that missing link which KKR did not have in the last season। जैसे एक और ऑलराउंडर, डोमेस्टिक ऑलराउंडर इतना इस ऑप्शन में नहीं थे, तो एक ही ऑप्शन था जो आउट एंड आउट मैच कर सकते हैं सुनील नारिन को और टू सम एक्सटेंट आंद्रे रसल को भी। जैसे इन दोनों में से कोई भी अगर प्लेइंग 11 से बाहर होता है, सो एट दैट टाइम आई विल थिंक लाइक this Sakib Al Hasan, he can definitely, I mean, like for like replacement for Sunil Narin. And if Andre Russell gets injured, then maybe KKR can think of playing him or Loki Ferguson, and can that if he plays, then it will be a good balance in the playing 11. So maybe Suhail, if you can think about, I mean, tell your views if Sakib is going to start in the playing 11. आपको क्या लगता है लाइक साकिब किस टाइम पे केकेआर में आ सकते हैं? फर्स्ट प्लेइंग 11 पहले मैच से ही आ जाएंगे, या फिर कोई इंजरी या फिर कॉम्बिनेशन का कुछ अगर प्रॉब्लम रहता है देन केकेआर से कि साकिब को ट्राई करेगी? ऐसे तो पहले ही लेना चाहिए उन्हें टीम में, मतलब जो उन्होंने 2012 और 14 में उनका बहुत कंट्रीब्यूशन रहा था टीम में, सो वो तो चाहिए ही हमें प्लेइंग 11। No, मतलब वो साकिब इज सच अ प्लेयर, आई मीन ही हैज बीन ओनली विद एसआरएच अपार्ट फ्रॉम केकेआर। तो अगर वो मतलब वो तो फील गुड फैक्टर, एक नॉस्टैल्जिक मेमोरी है हमारा कि अगर साकिब टीम में है तो जाहिर सी बात है खेलना चाहिए। बट आई मीन सौरभ, आप बताइए, व्हाट आई एम फीलिंग इज अगर स्पिन ट्रैक, आउट एंड आउट स्पिन ट्रैक ना हो तो मे बी केकेआर माइट नॉट प्ले साकिब एट द फर्स्ट प्लेस। Yeah, actually, KKR's first place choice will be always Sunil Narayan. But And as Andre Russell. we know, since Andre Russell, he's like main asset for playing 11. So you can't actually make him sit outside until unless he's injured. So as we know that Narayan opening combination is not going well since like 2018. So if Narayan is not like doing good with his bat, then KKR might think to include Shakib in place of Narayan, because he's a perfect like-to-like replacement for Narayan. And in bowling sense also, if he's not taking wicket, then he will control the flow of runs. Shakib always have done that. He created the pressure to the opponent, which leads to wicket-taking opportunities for us. And so what I think is not from the beginning, but after 2 to 3 match, if Sunil lost his consistency, then KKR will include him as replacement for Sunil. And talking about Andre, you said no.
for Andre, I guess Ben Cutting can be a replacement, not the like to like, because there is only one Andre Russell we know. हाँ, So as Ben Cutting can आकाश be a आकाश चोपड़ा अपने वीडियो में हमेशा ये बोलते रहते हैं कि there is only one Andre Russell, only one Andre absolutely. Russell. Of course. Absolutely, and KKR got Ben Cutting at the base price of 75 lakhs, so it's a win-win situation, and KKR can use him as Andre have always got some injuries, and like so he's in danger zone always. He remains so he can ball also, he can bat also, but not the level of Andre Russell we have in terms of Ben Cutting. But yeah, he's a quite good replacement in terms we can say. अरे मतलब वन आंद्रे रसेल मीन्स वो ऐसा आंद्रे रसेल की इस लास्ट सीजन में आपने देखा होगा लास्ट 3-4 मैचेस और रादर 2-3 मैचेस इवन इफ ही वाज हाफ फिट ही प्लेड फॉर केकेआर दैट इज आंद्रे रसेल फॉर यू लाइक वो बंदा अगर 30-40-50% भी फिट है तो ही विल डेफिनेटली स्टार्ट इन द प्लेइंग 11 and but with Ben Cutting in KKR will have that insurance कि अगर आंद्रे रसेल ना हो तो अगर बॉलर चाहिए तो लोकी फर्गूसन मे बी इन दैट प्लेस लोकी कैन प्ले राइट लोकी इज इमेजिन मतलब इतने फास्ट बॉलर इतने 14 करोड़ 15 करोड़ में गए हैं अगर लोकी को केकेआर ने रिलीज किया होता थैंक गॉड नहीं किया अगर लोकी को केकेआर ने रिलीज किया होता तो आई थिंक ही वुड हैव बीन 10+ फॉर श्योर आई मीन आप आदित्य सुहेल आप लोग बता सकते हैं सुहेल आपको क्या लगता है अगर हमने लोकी को जाने दिया होता तो लोकी कितने में जाते मेरे को तो 10 करोड़ प्लस ही लगता है 10 okay same he could have crossed the 10 crore mark so ये बात मतलब सारे एनालिस्ट हैं जितने भी क्रिकेट एक्सपर्ट हैं कमेंटेटर्स हैं सब बोल चुके हैं कि हेलो आई थिंक माय वीडियो गॉट फ्रीज Has my video got yeah, you're audible. Your video got paused, but you are audible. Okay. Yeah, you are audible. Okay, so the thing is, let me this thing it is already known, right? कि इस साल सुनील नारिन को ओपन शायद ना कराया जाए. What do you think? No, even from my point of view, not Sunil Narine in our opening batsman. I would like to see him as a pinch hitter in the middle overs, like in 12-13 over approx में अगर सुनील आके अपना कुछ 1 over 2 overs में कुछ भी power hitting करके if he gets 20 runs 25 odd runs then it will be a great to boost the lower order upcoming lower order. So I won't recommend KKR to go with Sunil as an opener. It's not working at all. बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज अगर केकेआर का पहले विकेट गिर जाता है और मतलब स्पिनर आर ऑन जैसे कुछ टीम्स में स्पिनर ही स्पिनर होते हैं तो ऐसे में जो मतलब एक बहुत बड़ा डिबेट रहता है ना कि मॉर्गन क्यों नंबर 4 नहीं आ रहा है व्हाई सुनील नारिन इज कमिंग तो दैट इज वेरी मच टेम्पटिंग आई गेस कि सुनील नारिन का ऐसा वो दबदबा है ऐसा रिकॉर्ड है स्पिनर के अगेंस्ट तो मुझे लग रहा है केकेआर विल स्टिल गो फॉर दैट स्ट्रेटेजी कि अगर 10 ओवर से पहले आई मीन 10 ओवर के बाद नहीं 10 ओवर के बाद आपके पास वो मतलब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाता है बैट्समैन का कि वो एक अच्छे से टीम को फिनिश कर सके तो 10 ओवर के पहले अगर विकेट जाता है और स्पिनर या स्लोअर बॉलर्स रादर अगर स्लोअर बॉलर्स उस टाइम पे बॉलिंग कर रहे हो तो इट्स हाईली लाइकली कि मॉर्गन विल सेंड नारिन अहेड ऑफ हिम. And Luka, as you mentioned, so overall, I would say keep opening Gill can do Gill with Gill. We can send Rahul Tripathi, and after that, if they goes well till 7 and 8 over, then Narayan can position of Narayan is totally situational based. Yes. But considering the situation, we can send him. Okay, so first is Gill opening. I mean, he's already opening for India, so I think all of us will agree. Sohail, Gill first, for sure. Yes. Okay, so who will open with Gill? Maybe Rahul Tripathi or Nitish Rana. I think KKR might go for Rahul Tripathi first. Yeah, Rahul Tripathi is a fine option. Okay, so first down has to be Nitish Rana. Yeah, Rahul. Rana, right? Okay, yeah, obviously.
यहाँ पे केकेआर के पास लास्ट ईयर कोई ऑप्शन नहीं था। अब इन तीनों के बैकअप हो सकते हैं ओवरसीज में टीम सिफर्ट जो कि विकेट कीपर बैट्समैन है, और इंडियन में करुण नायर। यस, तो करुण नायर इनका मतलब दो, एक ओवरसीज बैकअप, एक इंडियन बैकअप, विच इज मोर देन एनफ। अगर कोई इंजरी कंसर्न नहीं होता है तो केकेआर कैन डेफिनेटली लुक टू प्ले ऑल दोस 4 मैचेस विद कीपिंग दिस 2 एज बैकअप, क्योंकि 2 बैकअप्स एनफ है। और उसके बाद मॉर्गन एज ही इज द कैप्टन विल प्ले ऑल द 14 मैचेस एंड ही शुड प्ले rather he is captain or not. So Morgan, and then the most important question, where should Dinesh Karthik bat? 5 after Morgan. So for me, if KKR, I'll say yes, Adit. I'll say that I'll say after Morgan it should be Andre Russell, and then DK should come in, because DK is good at overs 15 to 20. That's where his strike rate also is around 150 plus, and he scores also. But last year we saw that he came up the order at number 3, number 4, and usually we saw him batting at 8th over, 12th over, and he was never able to settle in there for a longer period of time, and he used to get out quickly. So whenever he has come down to okay, मेरे लिए ऐसा है कि 10 ओवर के बाद 1 विकेट गया हो, 2 विकेट गया हो, मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे को रसेल चाहिए पिच में। ओके आदित्य, यू कैन कंटिन्यू। हाँ, सो एज आई वाज सेइंग कि रसेल को कुछ भी हो जाए, मतलब रसेल पहले आना चाहिए, डीके आखिर में रहना चाहिए। आखिरी के जो 5 ओवर है वो डीके को दे दो, कर सकता है वो, वहां पर संभालना आता है डीके को, लेकिन रसेल को आप दी ऑर्डर भेजो, मतलब मॉर्गन के बाद। वैसे जितने भी एक्सपर्ट हैं, मतलब डीके एक टाइम पे के इंडिया के टेस्ट ओपनर हुआ करते थे 2008, 9, 7 आई थिंक। इंग्लैंड में ओपन किया है उन्होंने, इंग्लैंड में ओपन किया है, बांग्लादेश में ओपन किया है, साउथ अफ्रीका में ओपन किया है, एंड एट दैट टाइम आई थिंक आवर फेवरेट गौतम गंभीर वाज एज अ बैकअप ओपनर फॉर इंडिया। तो वो मतलब डीके इतना एक अभी उस जोन में चले गए हैं कि फिनिशर, बट डीके इज स्टिल अ गुड इनिंग्स बिल्डर, बट as Morgan is there, Rahul Tripathi is there, Nitish Rana is there, and शुभमन गिल, अगर उनको बोला जाए कि 120-130 स्ट्राइक रेट पे खेलना है तो वो 15 ओवर तक इजीली खेल सकते हैं। मतलब एक आध इंस्टेंस जहाँ पे अच्छा बॉल आके वो आउट कर जाए या कुछ, बट सो व्हाट इवन आई एम विथ आदित्य हियर कि दिनेश कार्तिक एज द फिनिशर फॉर मी, और मे बी अगर विकेट बहुत जल्दी चला जाता है लाइक कोलैप्स, I mean, I hope ऐसा ना हो, as a KKR fan I'll never think of it. So in that case, DK ahead of this Andre Russell. Otherwise मेरे को तो 10 ओवर के बाद रसेल चाहिए उनको। मतलब लास्ट टू लास्ट मैच इफ यू इनिंग सीजन इफ यू रिमेम्बर, उनका एक स्टेटमेंट भी आया था कि आई एम बैटिंग वेरी लो करके, तो वो अभी बैटिंग का हो गया। तो वही है कि पहले 3 में एज हम लोगों ने डिस्कस किया, बैकअप आ गए, करुण नायर आ गए एंड टीम सिफर्ट, बट अभी ये तीनों का बैकअप आई डोंट थिंक मॉर्गन जिस लेवल का प्लेयर है उनका कोई बैकअप बन सकता है कोई भी। तो ऐसे में जैसे आपने स्टार स्पोर्ट्स का एक देखा होगा जो इस बार ऑक्शन चल रहा था, उसमें गौतम गंभीर थे हिंदी के में, उन्होंने भी पॉइंट आउट किया था कि इंडियन मिडिल ऑर्डर इज वेरी थिन। सो आई होप कि वो सिचुएशन कभी ना आए। इंडियन मिडिल ऑर्डर एक भी रिंकू सिंह है, और लास्ट ईयर निखिल नायक को खिलाया गया था इंडियन मिडिल ऑर्डर में, इस बार भी सेल्डन जैक्सन, ओके सेल्डन जैक्सन, या सेल्डन जैक्सन है, और बाकी कौन है, वेंकटेश अय्यर है और एक वैभव अरोड़ा, बट वैभव अरोड़ा इज ए बॉलर, वैभव अरोड़ा इज अ बॉलर एंड अय्यर इज अ लेफ्ट हैंड बैक ऑलराउंडर बैट्समैन, नॉट अ प्रॉपर बैट्समैन बट यू कैन से ऑलराउंडर, ही कैन बैट एंड बॉल। तो केकेआर मतलब मिडिल ऑर्डर में एक और बैकअप होता, जैसे गंभीर ने पॉइंट आउट किया था कि मे बी केकेआर कुड हैव गॉन फॉर केदार जाधव, बट केदार जाधव राइट ओके। तो लेकिन अगर मॉर्गन खेल लिए, डीके खेल लिए, और रशेल, शाकिब हो गए, और बैन कटिंग भी, ये सब मिडिल ऑर्डर लोअर मिडिल ऑर्डर की है, तो अगर ये सब को मतलब सब सही रहा देन डेफिनेटली वी डोंट नीड टू गेट इनटू दिस इशू एट ऑल। तो अब आते हैं स्पिनर पे। इस साल मतलब केकेआर के पास ऐसे स्पिनर हैं लाइक आप ड्रीम में भी नहीं सोच सकते। पहले तो सुनील नारिन, राइट, ओके,
ऑल्दो वो 2012 वाला सुनील नारिन नहीं है, उनके ऊपर बैन लग चुका है, जो भी मतलब मेरे को तो फर्क नहीं पड़ता, सुनील नारिन इज स्टिल सुनील नारिन। विकेट पहले जैसा नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनको मारना अभी भी, ही इज स्टिल बेटर देन लाइक 90% ऑफ आईपीएल बॉलर्स। सुनील नारिन आ गए, एक और आ गए हरभजन सिंह। मतलब उनका आप सोच सकते हो, यूट्यूब पे जब केकेआर के बिहाइंड द सीन्स या केकेआर चैनल पे वीडियोस आएंगे तो उनको देखने में बहुत मजा आएगा। वो फील्ड पे खेले ना खेले, उनका एक रहता है फनी स्वैग की सिंह इज किंग एंड ऑल, मजा आएगा उनको देखने में केकेआर में। बिल्कुल। और कौन है, पवन नेगी आ गए, साकिब, Pawan Negi is there, Shakib Al Hasan is there, we have Kuldeep Yadav। मतलब कुलदीप। और लास्ट ईयर अगर मेरे को एक केकेआर प्लेयर चूज करना पड़े जिसको मैं नाइट ऑफ द ईयर बोल सकता हूँ, दैट हैज टू बी वरुण चक्रवर्ती, जो अभी इंडियन टीम में आ चुके हैं। सो मतलब स्पिन में जैसे पुराना गौतम गंभीर के टाइम पे हुआ करता था कि ब्रैड हॉक, यूसुफ पठान, और कौन कौन हुआ करते थे, मतलब हर तरह के स्पिनर हुआ करते थे। अभी केकेआर के पास स्पिन की कमी नहीं है। पवन नेगी, वैभव अरोड़ा, आप 7-8 स्पिनर में से केकेआर को 2 ही खिलाने हैं, या फिर अगर वेस्ट में खिला, जैसे इस साल आईपीएल पूरा महाराष्ट्र में भी होने के चांसेस हैं। Probably it's going to Maharashtra। So on later stages of IPL we can include 3 spinners as well, because initially the track will be supportive for the fast bowlers। तो अगर नारिन खेलते हैं और एक और स्पिनर की जगह बचती है तो वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव। सुहेल, आप किसको चूज करेंगे? कुलदीप यादव। ओके, वरुण चक्रवर्ती को मतलब ये ऐसा है कि धर्म संकट वाली चीज है एज ए फैन के लिए। मतलब कुलदीप यादव इज नॉट गेटिंग दैट मच चांसेस, और हर बार लगता है कि यार इस मैच खिलाओ, और फाइनली लास्ट टेस्ट खेले वो, मतलब 2 साल से टीम में है यार। इवन वो मतलब सिर्फ एक गलती है, वो मोइन अली वाला ओवर, और इस बार मोइन अली को आउट किया ना, तो मेरा केकेआर फैन मतलब इनसाइड केकेआर, मतलब इंडिया फैन पहले हूँ ऑफ कोर्स, बट केकेआर फैन अंदर से जा गया कि इसका विकेट चाहिए था मोइन अली का। याद है ना वो आरसीबी वाला ओवर? अब राइट। आई होप कि ये पहले वाले कुलदीप यादव जैसे 2014 चैंपियंस ट्रॉफी के टाइम पे आए थे और सीधा इंडियन टीम में आ गए, तो वो आ जाएं तो केकेआर का स्पिन ऑल सॉर्टेड। आपको लेफ्ट आर्म ऑफ स्पिन चाहिए, लेग स्पिन चाहिए, राइट आर्म ऑफ स्पिन, राइट आर्म लेग स्पिन कोई है? आई थिंक राइट आर्म लेग स्पिनर कोई नहीं है। और तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक इज हरभजन। राइट आर्म ऑफ ब्रेक अगर आप नारिन को इंक्लूड कर सकते हैं तो ही इज एन ऑफ स्पिनर, बजी है, और मे बी सम एक्सटेंड नीतीश राणा, उन्होंने भी 2 विकेट लिए हैं। नीतीश राणा कैन बॉल, वो ओवर अभी तक याद है। नीतीश राणा कैन बॉल, वो मतलब स्पेशलिस्ट फर्स्ट ओवर बॉलर कुछ टाइम के लिए थे केकेआर के। ओके, नाउ फर्स्ट बॉलिंग में कुछ चेंजेस नहीं है ना, लास्ट ईयर टाइम जैसा ही है। तो केकेआर लास्ट टाइम फर्स्ट बॉलिंग इज प्रीटी सेम, लीडिंग विद Cummins and Prasidh Krishna is there with there is a confusion between to pick Nagarkoti or Mavi. That is the biggest confusion I ever felt as a fan, because both are a very young talent. Nagarkoti got the speed, Mavi got the variations, so it's very hard to pick which one do you want, the speed or do you want the variations। आपने देखा होगा अगर टीम इंडिया के इंस्टाग्राम हैंडल को फॉलो करते हैं तो शायद अभी संदीप वॉरियर भी टीम इंडिया के नेट बॉलर हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो आप उनको भी मत भूलिए, ही इज इन क्वारंटाइन विद टीम, राइट। तो मतलब तो आदित्य, अगर आपको 2 इंडियन फास्ट बॉलर खिलाना पड़े तो इंडियन फास्ट बॉलर मतलब बोले तो शिवम मावी मैं पक्का लूंगा, बिकॉज ही हैज बीन अ गुड पावर प्ले बॉलर। लास्ट सीजन मैंने देखा, मतलब विकेट्स दिलाने में काबिल थे। पैट कमिंस के साथ ही अच्छा खासा कंट्रीब्यूट किया पहले 6 ओवर के अंदर। सो शिवम मावी का रहना जरूरी है, क्योंकि पावर प्ले में जब विकेट्स मिलता है तभी एक टीम को लीड मिल चुका है वहां पर। और सेकंड बॉलर बोले, इफ यू आस्क मी, आई विल से कमलेश नागरकोटी या फिर प्रसिद्ध कृष्णा। सुहेल, आपके पहले इट डिपेंड्स, नागरकोटी। एक्चुअली आदित्य का थोड़ा फ्रेम फ्रीज हो रहा है क्या? मेरे को ऐसा दिख रहा है। Yeah, there is some network. हाँ, चलेगा, वॉइस क्लियर है। हाँ, नेटवर्क इशू। सुहेल, आप मतलब क्या आप
किन 2 इंडियन फास्ट बॉलर को पहले खिलाओगे? शिवम मावी और कमलेश नागरकोटी। अच्छा, लेकिन लास्ट ईयर पहले संदीप वारियर ने स्टार्ट किया था ना मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट। संदीप वारियर थे टीम में। हाँ। Yeah, Sandeep Warrior was first picked निखिल ahead नाइक को of भी डाला था Nagarkoti and शायद Mavi. फर्स्ट प्लेइंग 11 में। Yeah. Initially हाँ, they निखिल tried नायक all भी the combinations. इस बार बस एक ही प्रॉब्लम मेरे को जो थोड़ा बहुत लगता है कि अगर आई मीन ऐसा थोड़ा नेगेटिविटी हो जाएगी, लेकिन अगर दिनेश कार्तिक इंजर्ड होते हैं तो टीम का कॉम्बिनेशन बहुत बिगड़ सकता है। ऐसे में टिम सीफर्ड को खिला सकते हैं या फिर नो अदर ऑप्शन शेल्डन जैक्सन और कोई मतलब एक जमाना था रॉबिन उथप्पा कीपिंग कर लेते थे, अभी आई डोंट थिंक कोई कीपिंग करता होगा। तो वही एक चीज मेरे को एक एक बार सोचने पे डर लगता है कि कीपिंग Yeah, अगर after Dinesh Karthik, we only have शेल्डन Sheldon Jackson as Indian option इंडियन and विकेट कीपर। Tim Seifert. If we include Tim, then to which foreign player हाँ वही you will exchange? वो That's a bit वो like नहीं हो पाएगा वो, मतलब शेल्डन के साथ ही जाना पड़ेगा या फिर भाई शुभमन Yeah. गिल कीपिंग कर ले, जैसे मैच में याद है जयवर्धने ने कीपिंग करते थे। किस किस को याद है क्या जयवर्धने ने ये मतलब वो ऑल स्टार मैच में कीपिंग किए हैं? not really, I don't remember. तो मतलब केकेआर के अगर वही एक प्रॉब्लम लगता है क्योंकि दिनेश कार्तिक का इज द बैलेंसिंग एस्पेक्ट ऑफ दिस टीम। और वैसे Right. Yeah. आई थिंक हमने Like as you have said, the replacement. We currently have so much of backup options of the backup also. Like at a later stage, KKR might face some issues whom to pick or whom to leave. हाँ वो भी हो Like we सकता have है। so much of great bench strength, the great pace of warming bench. Like if Sunil Narayan get going with his performance with the bat and the ball, Narayan and Russell keeps going, then no place for Shakib to play. And such a great talent will be sitting on the bench. Same goes with Ben Cutting. और लोकी फर्गूसन भी। So Lockie Ferguson, right? But Lockie. keeping in the eye of this COVID situation, it is a good thing because if in case like negativity comes and a few players got injured, then there is no need again to do that quarantine procedure and all. Like we have already backup players to come in play at any moment of the time. So it is a good thing as well as a bad thing because you are losing some great players to play with you. मेरे को भी वही लग रहा है कि वही रीजन हो सकता है कि केकेआर ने इस बार 25 पिक किया, वरना केकेआर कभी 25 पिक करती नहीं है। 2018 में there is always 17, 19 players only. They always go with the short team. हाँ, तो वही लगता है कि जैसे कोई इंजर्ड हो गया तो आपको मतलब 2 हफ्ता क्वारंटीन में नहीं रखना पड़े एंड ऑल दैट। Yeah, exactly, to avoid those quarantine. Exactly. और केकेआर के मतलब इंजरी इश्यूज बहुत हो रहे हैं यार हर साल। मतलब 2017 में आंद्रे रसल, मेरे को लगता है 2017 का सबसे बेस्ट टीम था अब तक। तो कॉलिन डी ग्रैंडम, क्रिस वोक्स, क्रिस लिन, अगर उस टीम में आप आंद्रे रसल को डाल देते हो तो। और 2018 में सब सही था इनफैक्ट, बट केकेआर का उस वक्त बॉलर नहीं थे। पैट कमिंस जो 10 करोड़ 9.6 करोड़ लेके वो we are missing with a lead bowler तो who can lead the attack, right? हर साल इंजरी को लेके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। और जैसे 2017 में मैंने मेंशन किया आंद्रे रसल नहीं थे, बट स्टिल दैट वाज अ गुड सीजन। और बस मुंबई से हारे थे, थर्ड प्लेस में आए थे। और 18 में मिचेल स्टार्क, नॉट पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क मतलब ही डिडंट कम फॉर 9.6 करोड़। तो केकेआर के पास मतलब he made out. हाँ, केकेआर के पास वो लास्ट मैच में तो 3 ही ओवरसीज से खेले थे। और 2019 सही था। 2019 में भी वही नागरकोटी और मवी इंजर्ड थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो प्रसिद्ध कृष्णा बीच में आए और प्रसिद्ध कृष्णा बीच में आए और स्ट्राइक बॉलर बन गए। तो उस टाइम पे पृथ्वीराज यारा थे, संदीप वारियर और प्रसिद्ध कृष्णा, आई थिंक यही 3 थे। तो 2018 में भी शिवम मवी और ये Shivam Mavi in 2019, Shivam Mavi played a half I tournament, think he played in 2000. No. He played in 2018. He played in 2018. Yes. और लास्ट सीजन में
आंद्रे रसल बहुत Yeah, टाइम yeah, तक yeah, इंजर्ड exactly. रहे, और उनके साथ वो नारिन का जो एक्शन बैन हुआ था, तो मतलब हर साल केकेआर को कुछ ना कुछ इंजरी इश्यूज हाँ आ रहा है। आई होप इस साल कुछ ना आए, क्योंकि अगर वो एक एक छोटा सा कोई बैन हो रहा है या फिर कोई अवेलेबल नहीं हो रहा है, मतलब वो एक केकेआर ऐसा टीम है कि जैसे वेंकी मैसूर का आप इंटरव्यू देखेंगे कि एक वर्ल्ड कप टीम में कितने प्लेयर होते हैं, 16 से 17 होते हैं, एक दो इंजरी कवर के लिए रखते हैं, तो केकेआर में क्यों नहीं हो सकते? बट वो मतलब इतने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं उस टाइम पे ओवरसीज बैट्समैन या ओवरसीज प्रोफेशनल्स, जैसे मिचेल स्टार्क का ना आना, अगर उस टीम में आप मिचेल स्टार्क को ऐड कर दो, बॉलिंग को विनय कुमार बॉलिंग डाले थे और जेवॉन सर्ल्स, ऐसे प्लेयर से केकेआर ने मैनेज करके मतलब क्वालिफायर 2 तक गए थे। तो इस साल भी आई होप कि एक भी Qualifier इंजरी 2. ना रहे। तो अगर इंजरी नहीं Yeah, रहता hope है so. तो केकेआर हैज मेड ऑल बेस्ट कवर्स, बस मिडिल ऑर्डर में इंडियन बैट्समैन एक नहीं है, तो वो आई थिंक इतने ओवरसीज ऑप्शंस हैं, डेफिनेटली केकेआर कैन डू समथिंग। और बहुत सारे टीम्स में देखा होगा आपने कि जडेजा 7-8 नंबर पे आ रहे हैं और उधर कृणाल पांड्या आ रहे हैं 7-8 नंबर पे। केकेआर में वो एक रहता है कि 7-8 नंबर पे एक आउट एंड आउट, मतलब Yeah, till 7 we have, but from 8 बट onwards, the मेरे को bowlers. पैट कमिंस पे लगता है कि पैट कमिंस इज आल्सो नॉट लेस देन, आई मीन ऑफ कोर्स इज नॉट जडेजा, बट वो भी आके तो 50 मार के गए हैं यार। Yeah, वो भी आई he थिंक can ही hit गॉट the ball pretty 250s, well. आई थिंक ही गॉट Right, yeah, he right, got right. 250s। 250s. हाँ, एक मैच में लोकी ने भी रन मारा था। Hmm. तो पैट कमिंस इज आवर प्राइमरीली नंबर 7 बैट्समैन फॉर श्योर, नंबर 7 नंबर 8। और ये तो कब से सुनते आ रहे हैं कि कुलदीप यादव कैन बैट, कुलदीप यादव कैन बैट, बट वो एटलीस्ट चावला तक छक्के मार गए, उनका आज तक एक भी बैटिंग का इनिंग्स नहीं देख पाए हम लोग। Yeah, let's see first get him into the playing 11. और ये भी आता है राइट, नागरकोटी कैन बैट, शिवम मवी Nagarkoti इज can एन bat a bit, ऑलराउंडर राइट, yes. शिवम मवी इज एन ऑलराउंडर, बॉलिंग Shivam ऑलराउंडर। Mavi, Mavi is yeah, an Shivam Mavi yeah, also can bowling bat. all rounder. तो केकेआर में मतलब हैं 3-4 फास्ट बॉलर हैं जो, मतलब मैं तो पैट कमिंस को अभी ऑलराउंडर ही मान रहा हूँ। 50-50 मार के गए यार दुबई पे, और पूरा हाइट पे इतना बैट लेके पूरा जो फ्रंट फुट निकाल के जो क्लियर करते थे, मजा आता था उनको देखने में। बट ऑफ कोर्स इस नौबत ही ना आए कि पैट कमिंस को बैटिंग करके बचाना पड़े। Yeah, yeah, absolutely. ओके, सो वी आर डन विद द प्लेयर्स। अभी क्या बात करें, आई थिंक अगर इंडिया में 50% अलाउड होता है, ये सुहेल, यू आर फ्रॉम गुजरात राइट, अहमदाबाद में तो मैच हो रहे हैं आई गेस मोटरा पे, so you'll go Yeah, for Ahmedabad will be, I guess, for final those also। qualifier matches. Okay, Final and qualifier matches will be played in Motera. Playoffs, yeah. तो सुहेल तुम एक आध मैच जाओगे देखने? आने की इच्छा तो है। तो मतलब वही गुजरात और मोटरा है, और मुंबई और पुणे के ही स्टेडियम अभी शॉर्टलिस्टेड है ना, 4-5 स्टेडियम। Yeah, Mumbai, Pune, and Ahmedabad. These three places only. ओके, तो देखते हैं, अगर मतलब इस साल तो शायद ना हो, अगले साल कोशिश करेंगे जितने भी गोल्डन नाइट्स हैं केकेआर के, एक मैच कहीं पे ईडन गार्डन पे मतलब अच्छे से देखने की, वो पूरा सेलिब्रेट करने की। मतलब अगर वो मैच, अगर फील्ड Yeah, पे जा रहे absolutely हो मैच waiting for देखने, that day. अगर फील्ड पे जा रहे हो मैच देखने और वो 49 पे ऑल आउट वाला मैच केकेआर का कुछ देखने को मिल जाता है तो क्या मजा आएगा। Right. और इस साल अप्रैल राइट, वी कैन एक्सपेक्ट अप्रैल, बाय अप्रैल 22। Yeah, April second week. या तो From second week onwards, we can say. अगर सेफ साइड में 20, अगर अप्रैल 20 तक तो मैच हो ही जाएंगे। Yeah, April till April 20 start हो ही जाएगा। अभी सेकेंड वेव भी मतलब अगर आता भी है तो अभी से शायद प्लेयर्स को क्वारंटीन, मतलब इतना बीसीसीआई और गवर्नमेंट इतना सब क्वारंटीन और प्रोटोकॉल कर चुके हैं कि आई डोंट थिंक दे विल मूव बैक दिस टाइम, और आईपीएल तो होने ही वाला है फॉर श्योर। Yeah, if we can conduct Saeed Mushtaq Ali, we conducted Vijay Hazare is going on. Then that Indian Super League football tournament got placed in India only, so IPL can happen. अभी तो 50% प्लेयर्स भी अलाउड हो गए ना टेस्ट में। Yeah, spectators allowed also.
So not for sure IPL is going to be held in India, not going out of India this time. Okay, so on this note, maybe we can end this podcast. And it was nice talking to you all. Maybe next time we can include some more KKR Golden Knights, the KKR fans, as we say. And maybe we can choose our long pending wish list of picking Knight of the Year from 2008 to 2020. So maybe we can do the next podcast. Yeah, sure. Yeah, we और will, इस बार sure we will. पूरा पूरा कोशिश करेंगे कि मैच के बीच में या मैच के बाद या कभी पे भी ऐसा पूरा रिएक्शन देके, जितना 14 मैचेस हैं, मैच के पहले बाद में, ऐसे बहुत कम, मतलब अभी तो टेक्नोलॉजी है, सब घर पे ही है, तो मतलब एटलीस्ट आधा घंटा अगर हम निकाल के ऐसे और भी डाई हार्ड फैंस को लाके ऐसे पॉडकास्ट करें तो एक दूसरे को जानने में बहुत मजा आएगा। जैसे मैं आप लोगों को तो जानता हूँ, एब्सोल्युटली, आई थिंक हम आपस में सब एक दूसरे को जानते हैं। सुहेल थोड़े नए हैं, वो भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि एक दो पॉडकास्ट में ज्यादा बोलने लगेंगे, इस बार कम बोल रहे हैं। तो इस बार तो ज्यादा बातें मेरी और सौरभ की है, आदित्य का नेट कनेक्टिविटी अच्छा नहीं है, तो अगली बार कोशिश करेंगे 6 से 8 फैंस आए और मजे करें। या श्योर, बिल्कुल। Okay, then on this note, let's end this podcast and we'll look to conduct much more in upcoming days. Bye bye everyone. Korbo Lorbo Jeet Bore. बाय Yeah, Korbo Lorbo Jeet Bore. Korbo Lorbo Jeet Bore. Bye. बाय।